different parenting styles. अब there are different parenting styles that are available, that जो theories हैं, जो अलग-अलग models हैं, are there. ठीक है, but when we see ourselves as a parent, we see that we do not fall in particular category. many a times overlap करते हैं, हमें लगता है कि कभी हम इस कैटेगरी की तरह से बिहेव करते हैं, और कभी sometimes we behave like one category of parents, like sometimes we are demanding, sometimes we are not demanding, sometimes we have maybe we leave it to our children, and then responsiveness, that also depends, many a times. Sometimes we are very responding depending on our how my mood is today. So on the basis of that, my responsiveness to the child will differ. Okay, if you're very happy and you know something good has happened, so whatever your child will ask, and you will be like, okay, haan, theek hai, you do this. And in case like you're not happy or you're stressed about something, even a very small thing, like you know, if child just ask you कि अभी मैं सो जाऊं, तो उस पे भी आप गुस्सा हो सकते हो. ठीक है, so that completely depends on how we look at how we understand parenting. So what we are doing today here is like, instead of parenting styles, we will talk about parenting approach. Okay, now what is approach? Approach means ki this now approach is different for different people. Okay, now for like every child has different needs. This we all know, this we all understand. Every child has different needs, and every parent, both the parents, mother and father, they are both different in temperaments and priorities and needs. So all these dimensions are different for all these three people: child, father, mother, and if there is another sibling in the house, or if there are grandparents staying in the house. So there are so many factors which will decide your parenting, which will decide your interaction with your child. So following one parenting style or understanding some parenting style will might not suffice. Like वो आपको हो सकता है आपको help नहीं करेगा. So what we do is that we focus on parenting approach which is unique to your child, needs of your child and your family and you as a parent. ठीक है, तो जिसके लिए I don't have to look for any theory anywhere. This is my personal way of dealing with my child. So just give me a minute again. Yes, people are joining now, and now they're asking for the link. So a parenting approach. Why are we talking about parenting approach? Why do we need to understand? अभी parenting की पूरी बात आती कहाँ से है? Why do we have to understand parenting so much, and why are we focusing on parenting nowadays? क्यों suddenly बहुत ज़्यादा focus कुछ time से इस पे आ गया है parenting related issues पे, parenting related talks पे, parenting related concerns. So suddenly ये सब बहुत ज़्यादा कैसे हो गया है?
So there are like there इसमें क्या है एक सबसे important जो so good evening to all the people who have joined just now and we have started talking about parenting approach. So हम लोग parenting approach की why are we talking about parenting approach? ठीक है. Now parenting approach in childhood, it directly influences child's later development. ठीक है, later development as an adult. How the child develops as adult and how the child behaves as adult, that depends on what is our parenting approach the child is, you know, during the childhood. वो बहुत there is a direct connection. This I would like to emphasize upon. This I would like to emphasize upon that parenting approach in during the childhood is directly related to the how this child develops as a adult. Okay. What is this child's behavior in adulthood and what is this child's behavior in adolescence, and how this child takes the different aspects of his of life. So this I'll just come to now. So the child's understanding of their own self, how the child deal with themselves and how the child deal with the people around, and how the child deals with the studies, with the work, with the responsibilities. So all this depends on the parenting approach to a larger extent, to large extent. Okay. So because now there are different factors affecting the even parenting also is now being affected because there is lot of exposure to child. पहले की तरह नहीं है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और बच्चा घर में है और बच्चा ट्यूशन जा रहा है. सो बहुत थोड़ा सा एक एक्सपोजर होता था और एक टीवी देख लिया बच्चे ने. सो जो कि वो भी कंट्रोल में होता था. सो व्हेन द चाइल्ड इज वाचिंग टीवी इट इज कंट्रोल्ड लाइक पेरेंट्स नो व्हाट चाइल्ड इज वाचिंग, व्हाट इज हैपनिंग. But now that is not the case. Abhi there is lot of the child is exposed to a lot of places, other places other than the school and the family and the friends which are like visible, which parents know. Other than that, उसके अलावा भी child का exposure काफी बच्चे का exposure है. तो यहाँ पर this is the reason that we need to understand our parenting approach कि हम लोग किस तरह से what is all that we are considering. So welcome to 2, 3, 4 people who have joined just now. Astha, Surya, Rohi, Anita ji, Saroja. So we are talking about parenting approach. मैं एक बार फिर से थोड़ा सा repeat कर देती हूँ. We are not talking about parenting style. Parenting style is, these are hard categories जिसमें बहुत बार we feel that we do not fall in the particular category and it is overlapping. हमें लगता है कि हम इस कैटेगरी में भी हो सकते हैं और इस कैटेगरी में भी हो सकते हैं. तो हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेरेंटिंग अप्रोच की बात कर रहे हैं. अप्रोच विच इज यूनिक टू एवरी फैमिली. Why? Because every child has different need. Every parent, every father, mother, they have different priorities in life, different needs in life, and still people are coming, so I'll just keep it here like this. So we are talking about parenting approach which a parent can develop, which a family can develop. So now where all do we need to focus upon? अब हम कैसे इसको, how do we develop our parenting approach? How do we understand our parenting approach? And as I just said that parenting approach is related to the personal, the identity that child will form as adult and the values that child will have as an adult.
our parenting approach will directly affect that. हमारा जो parenting approach है वो बच्चे की identity उसकी कैसे होती है एडल्टहुड में, और उसके वैल्यूज क्या हैं, वो किसको वैल्यू करता है, वो क्या चीज वैल्यू करता है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ऑल दैट अंडरस्टैंडिंग विल कम फ्रॉम कि पेरेंट्स के साथ में उसने क्या देखा है और क्या समझा है. So let us now understand 3-4 words. हम 3-4 चीजों पे फोकस करेंगे. So when we are saying my interaction, my families, how this family, particular family means father, mother, and if there are grandparents staying with the child. So how they interact with the child. So very first and foremost important thing in any human relationship is control, is use of control, use of power. ठीक है, दैट इज द इफ एनीबडी वुड यहाँ से आप लोग किसी को नोट करना है तो आप यहाँ से नोट करना शुरू कर सकते हैं. आज मैंने स्लाइड्स नहीं बनाया है क्योंकि आई थॉट कि बहुत ज्यादा मेरा ध्यान फिर स्लाइड्स पे ही रहता है. सो आई थॉट लेट मी जस्ट टॉक एंड लेट एवरीवन आल्सो पार्टिसिपेट इन द टॉक. सो दिस इज अ पेरेंटिंग सर्कल. लेट मी फर्स्ट क्लियर थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन दैट आई एम प्रेजेंटिंग. सो मैं थोड़ा सा बताऊंगी एंड रेस्ट आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. ठीक है, रिलेटेड टू द वी विल स्टिक टू द टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो फर्स्ट एंड द foremost dimension of any relationship, be it a parent-child relationship, be it with your partner, be it with your friends, be it in your office, anywhere, the first dimension of any relationship is the control. Who is controlling the environment? Who is being controlled? कौन कंट्रोल कर रहा है, कितना कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल हो रहा है और कितना कंट्रोल हो रहा है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड, हम ये सोचते नहीं है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बच्चा कैसे इसको रिएक्ट कर रहा है. तो ये जो कंट्रोल वाला जो इक्वेशन है, ये पेरेंट्स बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हम लोग इसको ले लेते हैं कि बच्चा है तो हमको ही कंट्रोल करना है, हमको ही समझाना है. ठीक है, सो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. यस, सो यहाँ पे एक हाउ नाउ दिस चाइल्ड हु इज कंट्रोल्ड ऑलवेज, ठीक है, हर चीज में. सो कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करते हैं हम? लेट अस टॉक कि प्रैक्टिकली कंट्रोल कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं पेरेंट्स. वेयर डू पेरेंट्स एक्सरसाइज कंट्रोल when they are interacting with the child? Let us understand this. Let us have some examples of the day's routine interaction with our children. Yes, would anyone like to share कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों को? हाँ जी. Okay, starting from the time the day begins, when you get up, what to eat for breakfast, then the next thing we control is how much screen time, then to do the homework, when to go to play, how much time do you spend with your friends. Then yeah, I think so. That's it from my part. Yes, anyone else? और कोई बोलना चाहेगा कैसे कंट्रोल करते हैं? Sure. So also to like how to study, what to study, what things to read or not read, how to talk. So we do control all that. आंटी को नमस्ते बोलो, अंकल को नमस्ते बोलो, ये पोएम बोल के सुना दो. ठीक है, सो ये सब सुने हुए लगते हैं सेंटेंसेस जी, है ना? तो अच्छा, गुड, राइट. एनीथिंग एल्स? और कोई शेयर करेगा? Food also. I think food is a very important aspect we try to control. Though at least I fail most of the time, but I try to control what my son eats.
Yes, that's a big thing we control. यस, फूड इज वेरी वेरी बेसिक, जो हर जगह बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये खाओ, ऐसे खाओ, नीचे मत गिराओ, और ये खा लो तो ये तुमको न्यूट्रिशियस है, इससे विटामिन आएंगे, इससे ये आएगा, इससे वो आएगा, केला खा लो इससे ये हो जाएगा। तो बहुत सारा हम लोग बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। और कुछ सो बेसिकली कंट्रोल ये तो हमारा है कि जो डे टू डे की लैंग्वेज में, इन द डे टू डे, हाउ इन डे टू डे लैंग्वेज, इन डे टू डे इंटरेक्शन, हाउ इट हैज बिकम अ इनवॉलंटरीली पार्ट ऑफ अवर वोकैबुलरी एंड अवर बिहेवियर। ठीक है, हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, हम सीधा बोल देते हैं। ठीक है, और हमारे बहुत, हम ये सोच के नहीं करते कि हम बच्चे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको कुछ करना चाह रहे हैं। नॉट दैट, it has just become a part of our interaction with our child। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा एक कॉन्शियस होने की जरूरत है कि जब when a child is completely controlled and बहुत ज्यादा जब कंट्रोल हम बच्चे को करते हैं, तो एक तो उसके एक दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये बच्चा 13, 14, 15 ईयर्स में जाके कंप्लीट रिबेल करता है। ठीक है, स्पेशली इफ इट इज अ बॉय, and even if it is a girl, there are high chances now, because of the social structure and because of a lot of other factors. So there are chances, there are now we can see that even girls also rebel at the age of 14, 15, we can see that। ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सो या तो वो रिबेल करेगा, और या फिर वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, वो गिव इन कर देगा। जब बच्चे को हम हर चीज कंट्रोल करते हैं, तो वो एक एज में जब उसको लगता है कि नाउ माय आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिशिंग एंड मैं क्यों किसी और की बात सुनूं, तो वो एक एज, उसका स्टेज आता है विच इज 13 ईयर्स के आसपास। ठीक है, 12, 13 ईयर्स के आसपास ये स्टेज आता है जहां पे बच्चे को लगता है कि मैं क्यों सुनूं किसी की बात। तो वहां पे उसका वो रिबेल वाला एक शुरू हो जाता है कि जो भी वो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जनरली 14, 15, 16 में पेरेंट्स को ये वाला बहुत कंप्लेन होता है कि whatever we are telling to the child just does not do that। ठीक है, तो वो ये है कि this I always share in all my talks that the child, you can control a child only till the child is dependent on you, biologically dependent on you, for food, for shelter, for everything, till the child is dependent on you। The moment the child starts understanding कि मेरा डिपेंडेंस बहुत ज्यादा नहीं है एंड मैं अपनी इंडिपेंडेंट, एक मेरी आइडेंटिटी है, तब वो उसका जो है इट कम्स ऑन द फेस कि मुझे नहीं सुननी है आपकी बात। ठीक है, तो उसकी शुरुआत जो है टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट एम्बैरेसमेंट, जब जनरली होता है 14, 15 की एज में, जब बच्चे सामने बोलते हैं या झगड़ा करते हैं या काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं, जवाब देते हैं, उस समय पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट तब फील होता है व्हेन दे आर विद समवन एल्स, जब बच्चे ये चीज किसी और के सामने करते हैं। ठीक है, वेरेस जब वो अकेले होते हैं उस समय, जब बच्चा और वो है, तो उस समय वो एम्बैरेसमेंट नहीं होता है, उस समय इट बिकम्स अ बिग एंगर। बहुत तेज गुस्सा आ जाता है पेरेंट्स को कि हमारे साथ, मतलब हाउ आर यू आर्ग्यूइंग विद मी, ठीक है, हाउ आर यू टेलिंग दिस टू मी। तो वो एक और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, then it brings gap also, it brings in gap। So when we say control, तो या तो वो रिबेल करेगा, या वो डिपेंडेंट होगा, या फिर अगर हम उसको ओवर हेल्प कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट इट, कि वी आर ओवर हेल्पिंग द चाइल्ड विल लूज द विल पावर। ठीक है, अब या तो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, या उसको हमने कंप्लीटली छोड़ दिया है। उस कोई डायरेक्ट कंट्रोल में 2-3 चीजें हैं। वन इज वेयर यू completely control their life, and other is where you control the direction, not the life। ठीक है, यहां से हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, इट इज लाइक there has to be a control, पेरेंट का कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा completely। ठीक है, बट कहाँ पे होगा? Not on the life of a child, but there is to show the direction,
दैट अ पेरेंट कैन कंट्रोल. ठीक है, डायरेक्शन बता सकते हैं पेरेंट्स कि सी दिस इज कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, वहां पे आपका कंट्रोल है. ठीक है, बट इफ यू दिस आई थिंक ऑल्सो आई शेयर्ड लास्ट टाइम दैट इफ यू गेट इनटू द प्रोसेस, वहां पे इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल द प्रोसेस, then it becomes, what happens is that the child either you get used to it कि मुझे हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस बताएगा. And when there is no one to tell the process, when let's say at the age of 18, 19, 20, when the child is out of their house in the outer world, उस समय जब उसको कोई प्रोसेस बताने वाला नहीं है तो फिर वो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है. ठीक है, then what happens is, then that is the age, especially for girls, जो अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाती हैं. दिस लेट अस अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गर्ल्स हियर. So girls which are not able to, daughters like by the age of 13, 12, 13, 14, 15, जो गर्ल्स अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फ्रॉम देयर मदर एंड फादर एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, उनके साथ में ये इशू होता है कि when as they are out of the circle of their parents' influence, they will look for someone to associate their identity with. ये थोड़ा सा समझ में आया कि ये गर्ल्स के केस में है, ये होता है एडोलेसेंट जब गर्ल्स हैं 15, 16, 17 वाला जो एज है, लेटर एडोलेसेंट, सो दे लुक फॉर समवन. अब या तो वो कोई लड़का हो सकता है या फिर वो कोई लड़की हो सकती है. मैम एक्सक्यूज मी. यस मैम, सो ये जो पॉइंट आप बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि गर्ल को अपनी आइडेंटिटी समझने का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें ये है कि अब कैसे आप आइडेंटिटी समझाओगे. सो बेसिकली ये बहुत आइडेंटिटी समझेगा नहीं बच्चा. वो कैसे है कि जैसे दिस इज नाउ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक एज के बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी जाए कंप्लीटली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके स्कूल का काम है, उसके टेस्ट से रिलेटेड काम है, उसका कुछ भी. इफ यू आर वेरी वेरी हेल्प, यहाँ पर यही आ जाएगा कि अगर आप बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, और बच्चा इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहा है, independently the child is not doing any much, and it is the child is always helped by parents for everything, for doing things, for making decisions about them. जैसे बच्चे को बाहर जाना है, 8, 9, 10 साल में शुरू हो जाता है कि भाई मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जाना है, या छोटा कुछ पार्टी है या स्टे ओवर है ना, नाइट आउट है. तो इस तरह की बातें, ये सब कुछ अराउंड आजकल के टाइम में 9-10 साल में शुरू हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कंप्लीटली अगर हम रोक देते हैं बच्चे को कि नहीं दिस यू कैन नॉट डू, तो वहीं पे वन इज द डायरेक्ट मैसेज दैट वी डोंट ट्रस्ट यू एंड वी नो दैट व्हाट यू विल डू इज रॉन्ग. ठीक है, और समथिंग रॉन्ग कैन हैपन विद यू. ठीक है, तो ये एक बहुत डायरेक्ट मैसेज आता है. तो इसमें क्या है कि मोर ओवर आप बहुत लंबा कंट्रोल नहीं कर सकते हो किसी भी बच्चे को. ठीक है, क्योंकि एट वन पॉइंट द चाइल्ड विल देन स्टार्ट लाइंग टू पेरेंट्स, फिर वो झूठ बोलने लगेगा थोड़े टाइम में. ठीक है, और वो अपने कुछ बहाने बनाएगा और उसको जो करना है वो करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, अब नाउ टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी, वी कैन टॉक टू द चाइल्ड एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग. ठीक है, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ पे रहने करने वाले हो, क्या होने वाला है ना, वहां पे क्या होने वाला है. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, so that then the child feels कि भाई उसको आपने responsible समझा है. ठीक है, the moment child feels कि उसको you are making her responsible of her, for her life, तो वहीं से उसका एक independence आने लगता है. ठीक है, till the child will not feel that you are leaving the responsibility on the child, तब तक उसमें independence नहीं आएगा. ठीक है, और जैसे कि बहुत छोटा जैसे कि ये ना बाहर जा रहे हैं तो क्या आपका सामान है, जैसे बच्चे बाहर इफ यू आर गोइंग आउट, सो हु इज
बच्चे का सारा सामान आप खुद पैक कर रहे हो। 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे का सामान पैक करने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को। चाइल्ड शुड बी एबल टू डू इट ऑन देयर ओन। ठीक है, आफ्टर अराउंड द एज ऑफ 6 or 7, एक्चुअली 7 साल के आसपास में बच्चा, गर्ल्स कैन डू ऑल दिस एंड बॉयज बाई 8। ठीक है, सो गर्ल्स कैन डू देयर ओन पैकिंग एंड ओन अपना पूरा प्लानिंग। गर्ल्स जो है वो 6 से 7 की एज में कर सकते हैं और बॉयज जो है वो 7 से 8 की एज में कर सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंस है थोड़ा सा, बिकॉज ये बायोलॉजिकली गर्ल्स मेच्योर अर्ली, ठीक है, देन बॉयज। तो बॉयज का वो थोड़ा सा एक स्लो चलता है टिल द एज ऑफ 14, 15, 16। उसके बाद में लेटर स्टेज पे दे पिक अप। ठीक है, फिर वंस द गर्ल्स कम टू प्यूबर्टी एंड एक उनका फिर अलग साइकिल शुरू हो जाता है, तो उनका एक ग्रोथ फिर अलग लेवल पे आ जाता है और बॉयज का ग्रोथ अलग लेवल पे चला जाता है। तो बट टिल द एज ऑफ अराउंड 14, 15 girls mature faster than boys. Till the age of 17, 18 actually girls matures faster than the boys. तो जहां भी हम लोग यहाँ बात करेंगे वहां पे एज डिफरेंस 2 साल का करीब करीब होगा। ठीक है, जैसे कि 6 साल में जो लड़की कुछ बच्चा कुछ दिखा रहा है माइलस्टोन्स, वो लड़का 7 से 8 में भी दिखा सकता है। ठीक है, तो यस, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऐसे एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं बाय गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बाय ट्रस्टिंग द चाइल्ड। This is the only way you can make them independent. Till you don't do this, till you don't trust them, don't make them responsible for their own thing, till the child will not be able to understand their own identity. Identity जब हम understand करते हैं अपनी, तो we make mistakes. ठीक है, even adults do that. तो बच्चे से तो होगा। ठीक है, so हम लोग हर बच्चे की हर गलती को गिन नहीं सकते हैं कि देखो तुमने लास्ट टाइम भी गलती की थी, है ना। सो जब हम उस लेवल पे बात करते हैं बच्चे से कि भाई तुमने लास्ट टाइम भी गलती की थी, सो दैट इज व्हाई आई विल नॉट लेट यू डू दिस नाउ। ठीक है, तो बच्चा, क्योंकि बच्चा इज ऑल्सो सीइंग कि हमारे पेरेंट्स की 100% सारी बातें हमेशा बहुत सक्सेसफुल नहीं होती हैं। द चाइल्ड सीज दैट, द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट, बट जब मेरा नहीं होता है तो फिर मुझे बोला जाता है। ठीक है, पेरेंट्स को कोई नहीं बोलता है, तो वो एक वो समझने लगता है बच्चा। बच्चा उसे बहुत बार एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बट इट इज देयर इन चाइल्ड्स माइंड। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि एडल्ट जो हैं, बड़े जो हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो बच्चे हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये इसको हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि आइडेंटिटी कैसे एस्टेब्लिश हम करवा सकते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट बहुत अलग टॉपिक है ये पूरा। इस पे फिर हम लोग बात कर सकते हैं। मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प चिल्ड्रन एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटीज। सो एक फर्स्ट जो एस्पेक्ट है, ये कंट्रोल का हमने बात की। सो जब हम अपने व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेरेंटिंग अप्रोच, वी नीड टू सी हाउ मच आर वी कंट्रोलिंग द चाइल्ड। ठीक है, हाउ मच द चाइल्ड हैज से, बच्चे को कितना हम अलाउ करते हैं बोलना। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इंक्लूजन। ठीक है, हाउ मच यू इंक्लूड द चाइल्ड। जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो हम बच्चे को अपने साथ कितना इंक्लूड करते हैं। ठीक है, टिल द एज ऑफ 6 or 7 children like to be included with whatever the mother is doing. ठीक है, whatever the mother is doing, if she is washing utensils, अगर वो बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टिल द एज ऑफ 5, 6 बच्चों को दे वांट टू बी इंक्लूडेड, जो मदर कर रही है उसके साथ में। ठीक है, उसके बाद में वो थोड़ा सा चेंज होता है, बट उसके बाद में क्या होता है कि फिर थोड़ा सा जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स का जनरली ये रहता है कि अब तुम बड़ों की बातें नहीं सुनो, तुम अपना काम करो। ठीक है, सो दिस कम्स वेरी कॉमन। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग कंटिन्यूअसली बच्चे को वी डू नॉट इंक्लूड द चाइल्ड in what we are doing, the child slowly either will withdraw कर लेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चे को, तो ये जो बच्चे हैं धीरे धीरे इंट्रोवर्ट या लोनर्स या जिनको अकेले रहना पसंद है, ये ऐसे धीरे धीरे उस में हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। ठीक है, एंड इनहिबिशंस बढ़ जाते हैं उनके, मतलब कि मैं ये करूं कि नहीं करूं,
ये ठीक है कि नहीं है. सो ये जो इनहिबिशंस है हर चीज के लिए वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, ऐसा करना चाहिए, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, इज दिस राइट फॉर मी, इज दिस नॉट राइट फॉर मी. सो ऑल these inhibitions increase when we do not include the child in whatever we are doing. ठीक है, तो अब हम जब चाइल्ड को बच्चे को इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि बच्चा बार बार आपके पास आएगा, बार बार आपके पास बैठने की कोशिश करेगा. एंड देन वी से नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म विच इज यूज कि द चाइल्ड इज सीकिंग अटेंशन. ठीक है, अब child is actually not seeking attention. The child wants to be a part of the group. The child wants to be with you. So can you see the difference? Attention seeking or want to be a part. Can you see the difference? Yes, Rohi. Want to speak anything? No, I completely agree with what you said, and this is what has happened to me. Yeah, that this happened with me during my childhood, and because of which I was not, every decision that I made, I used to think that, whether should I take this decision or not, and I turned out to be an introvert at growing up. So I could relate to it, which is why I did the clapping sign. Thank you for sharing this. Once you see it all these talks now, it helps you as parents also, as an individual, not as a parent, but as an individual also, because when you can relate, you can see the root cause, then you can face it, and you can now as an adult, you can understand that what has happened and now what you can do. Okay, so once you know the root cause, once you know the process that you have gone through, then it is easier for you to understand and resolve your own issues also. So yeah, so inclusion is this is what happens. Actually, what I understand is that children, when they see that adults are not including them in what they are doing, sometimes it might happen that then they become more curious that what is it that they're talking about, what is it that they're doing. So they become more curious about it. So जब attention हमें लगता है कि the child is seeking attention, ठीक है, whereas the poor child is trying to be a part of what you are doing. वो आपके साथ आना चाह रहा है, वो आपके पास बैठना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, समझना चाह रहा है. तो जब वो नहीं हो पा रहा है और हम उसको अटेंशन सीकर समझ रहे हैं, फिर क्या होता है, कुछ बच्चे दे स्टार्ट देन एक्सरसाइजिंग पावर. ठीक है, पावर कैसे एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, लाइक दे स्टार्ट देन टेलिंग यू ऑन फेस कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, और हम ये नहीं करेंगे. सो दैट इज द वे दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग पावर. इस तरह से वो दिखाने लगते हैं. एंड देन और फिर एक पॉइंट आता है बच्चों का जहाँ पे उनको लगता है कि अब तो मैं ये नहीं ही करूंगा. बहुत बार many times it happens that a child says that, ये मैंने पर्सनली आई हैव सीन दिस केसेस वेयर अ चाइल्ड सेज कि अब तो मैं कम मार्क्स लाके दिखाऊंगा. ठीक है, ये भी होता है. दिस ऑल्सो हैपेंस. हैज एनीबॉडी एक्सपीरियंस दिस कि अब तो मैं ये नहीं ही करूंगा, अब तो मैं कम मार्क्स लाऊंगा? ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है कहीं पे अपने या किसी और के साथ? Would anyone like to share? Okay, so यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है कि the child starts feeling inadequate. ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसको लगता है, जब आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे बहुत बार बच्चे लोनर होने की तरफ भी चले जाते हैं और वो पेरेंट्स के साथ में बात करना उनका धीरे धीरे कम हो जाता है. ठीक है, एंड देन अभी हम लोगों ने बात की पहले कंट्रोल की, which is a dimension which affects the identity of the child directly. उसकी आइडेंटिटी कैसी बन रही है उसको डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है. सेकेंड, वी टॉक्ड अबाउट इंक्लूजन. हम उसको इंक्लूड करते हैं, अपने साथ में नहीं करते हैं वो. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अफेक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट इज अफेक्शन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? हम लोग अफेक्शन से हमें क्या समझ में आता है? सो द वे वी शो अफेक्शन
and warmth and love to child, from there child understands the optimism or pessimism about relationships, about the various parameters of relationships. ठीक है, relationships को समझना बच्चे का जो है वो यहाँ से directly connected है, that how the parents exercise affection with the child. ठीक है, does that happen, like especially if your child is below 7 or 8 साल तक का, if the child is boy below 8 to 9 and girl around 7 to 8, so affection for them is like food. Okay, if they don't get food once a day, it's still fine, but if they don't get affection, हमें लगता है कि हम बहुत warmth बच्चों को दिखाते हैं, but let us discuss about this. Let us share our experiences about this. You can share, अपने बच्चों के बारे में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने own आपके experiences अपने parents के साथ रहे हैं, कुछ उससे share करना चाहते हैं, तो that also you can share. Let us share, what do you understand by this affection, how it practically works between parents and children. कितना हम दिखाते हैं, कितना हमने देखा है, और क्या समझते हैं हम, what do we understand by this? So ma'am, for me affection would mean कि बच्चे को जैसे हग करना, किस करना, एक स्पेशल टाइम होना जब जैसे रात में 5 मिनट सुलाने से पहले दोनों मम्मी पापा आके उसके साथ हग करें, किस करें, मस्ती करें. So that's my idea of affection. Just be silly with the child for 5-10 minutes. True. और कुछ? Other than this, what do you think is the affection? Ma'am, but for me the problem is that what happens is that my child is like so hell-bent, on 5-10 minutes, 10 minutes, she may wants to make 15 minutes, to make it 20 minutes, and sometimes we are tired, not in the mood, so almost we feel कि हमने तो कोई गुनाह कर दिया if we are not being able to give that time, and it just seems कि it's not enough for the child. Is that normal? What is the age of your child? 10 and a half, 11 almost. Boy? Hanji? It's a boy or girl? Girl. Okay. See, actually ये जो age है 7 के बाद में 7 to 14, the time for girls, it is a time which is when the child is completely operating through feelings. ठीक है, below 7 क्या होता है, feelings उस तरह के नहीं होते. The child only understands the environment and the warmth in a different way. ठीक है, senses पे बहुत ज़्यादा काम करता है बच्चा. लेकिन at the age of 7 to 14 girls, it is a lot of feeling thing is included. ठीक है, and वो feelings कैसे express करते हैं girls? By speaking and by talking and by expressing कि उनका दिन कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या किया, friends ने क्या कहा, friends के साथ में क्या बात हुई. So if 10-year might want to talk about all that. So and even during the day also, because if how the connection is like during the day, how much time we are spending together, all that, see, at least 1 hour the child would need, at least 1 hour, okay, before sleeping. This I always like tell to parents that if possible, give 1 hour before the child is sleeping, be with the child. So that gives child a lot of assurance. ठीक है, बेशक अभी हमारा जो पूरा दिन का रूटीन होता है, some of us are working, we are like in different busy with different things, so maybe हम दिन भर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, but जो सोने वाला टाइम है, because that's a very very important time,
psychologically also. It's a very important time when the child is going for a sleep. When the child is going for a sleep, the child should go to sleep with lot of love and assurance and feeling, very much at peace. So if possible, if you can somehow work upon it, then try to spend at least an hour before the child is asleep with the And child. that 1 hour could be like reading together. She can read her own book, we can read our own book, watch TV together, eat together. All that is included. Not TV. No. I thought आप यही बोलेंगे पर मैंने टीवी try तो मारा. बिल्कुल नहीं. And reading also, like अपना अपना read कर रहे हैं नहीं. Be with the child. If the child is reading something, let the child read. Let the child, read and you listen to it. And like be with the child physically, mentally. मैंने पिछली बार ये last time हमारी बात हुई थी कि physically, mentally, emotionally, spiritually जब हम बोलते हैं मतलब कि how you look at the bigger picture of life of child. That is the spiritual way of looking at it, spiritual element. तो सोने से पहले आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं अगर सोने से पहले 1 घंटा पहले आप बच्चे के साथ में कंप्लीटली physically, emotionally, mentally present रहें. So you will see that how your child will bond with you. Okay, thank you for that. You will see the difference. उसको आप try करो 15-20 दिन में you will see the difference. ठीक है? Because वो एक time है when the child is going to the sleep ना, the child is carrying the complete day. The feelings that child has gone through during the day, the child is carrying it to the sleep. And something which is taken to the sleep, जो वो नींद में ले जा रहा है, वो उसके दिमाग में subconscious में जाके ठहर जाता है, बैठ जाता है. So जब बच्चे सोने से पहले डांट खाते हैं या उनको गुस्सा किया है या कुछ किया है, तो वो बच्चा उसके साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा, वो चीजें बैठ जाएंगी सोने से पहले जो भी हो रहा है. जो सोने से पहले हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको एक अलग इसको और वी कैन टॉक, ये भी एक पूरा टॉपिक है अपने आप में कि हाउ दिस, व्हाट इम्पैक्ट डज दिस टाइम मेक ऑन चाइल्ड्स लाइफ now and later also. Okay, so for all the parents here, like if you can do this, spend at least 1 hour. If you can do little more, then it's very good. Like पूरा evening का time अगर आप spend कर सकते हो 7 बजे के बाद का, आप you involve the child in cooking, you involve the child in serving, you involve the child in cleaning your table, clearing the table, and you involve the child in everything whatever you're doing, and then आप उसको last में उससे 1 आध घंटा बात करिए, and you see the quality of relationship. ठीक है. सो ये हुआ. सो अफेक्शन इज, अगर अब नाउ इफ द चाइल्ड पीपल, इफ द चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग दिस अफेक्शन प्रॉपरली, तो उनका जो है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट बड़े होके, ठीक है, वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू ट्रस्ट पीपल. दैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट. And they always remain anxious when it comes to relationships, especially. So within the relationship, they're always anxious. Okay, if this affection thing is missing in the childhood, तो बड़े होके, like if we can relate it to ourselves also, हम खुद के साथ में भी relate कर सकते हैं कि बहुत बार adults होते हैं जो relationships में अपने partner के साथ में या मतलब एक anxiety बनी रहती है हमेशा. ठीक है, कि ये ऐसे कर दूं, ये अच्छा लगेगा, ये ठीक नहीं लगेगा, ऐसे कहूं, वैसे कहूं, ऐसा करूं, नहीं करूं, ये हमेशा एक ऐसी क्वेश्चनिंग सी चलती रहती है दिमाग में. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ अफेक्शन एंड लैक ऑफ कंपैशन. और बहुत ज्यादा नहीं. सी, व्हेन आई एम सेइंग लैक ऑफ अफेक्शन, नो पेरेंट डज इट इंटेंशनली. ठीक है, इंटेंशनली हम लैक ऑफ अफेक्शन कभी नहीं करेंगे. हम हमेशा चाहते कि हम बच्चे को प्यार करें, बट इट हैपेंस, इट जस्ट हैपेंस. वो होता है और वो हो जाता है. ठीक है, हमें टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द डे. सो वी डोंट इंटेंशनली डू दिस कि हम अब बच्चे को प्यार कम करेंगे, बट वो होता है एंड वो काफी ज्यादा होता है. बहुत बार हम देख नहीं पाते, वी आर नॉट एबल टू सी इट दैट व्हाट इज हैपनिंग, एंड द डेज कीप्स just goes on, and then the child becomes 13, 14, 15-year-old who is then difficult to deal with. Okay.
So उसका जो प्रिपरेशन है, this has to be done in the childhood, early childhood में हो गया, ठीक है. नहीं हुआ तो जो next stage है 7 to 14 वाला, वहां पे भी then there is a different way of वो पूरा पैच अप करने का फिर एक अलग तरीका है, ठीक है. So and these are the children who then become people pleasers. They always want to please everyone. वो हमेशा चाहते हैं कि मैं सबको खुश रखूं on any cost. ठीक है, इसका भी काम कर दूं, उसका भी काम कर दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, सब कुछ करके, मतलब they try to keep everyone, but then as we know that it's not possible practically, and then this person then ends up remaining anxious or remaining in lot of restlessness in the mind. So these are some you might have seen some people, adults who cannot reciprocate to emotions. ठीक है, बहुत बार जैसे कि रेसिप्रोकेट नहीं, मतलब कि कोई जो इमोशंस कोई वार्मथ दिखा रहा है तो वो वार्मथ सामने से नहीं दिखा पाते हैं. ठीक है, सो वो this when does that happens is like जब अफेक्शन की क्लैरिटी नहीं है तो the adult now does not know how to show affection to the other person. ठीक है, so now अब ये सारा है, ये सारी 3 चीजों पे हमने बात की है आज. हम we talked about control, we talked about inclusion, and we talked about affection, and we talked about how they affect the child and the adulthood, in the adulthood also. And these are the 3 things. If we work upon these 3 things, then we start exploring our emotions, that हम कंट्रोल कैसे करते हैं हमारा. जब हम बच्चे को कुछ, if we are asking a child to do something and the child is not doing that, how is our reaction? How do we behave at that point of time? अगर हम उस पे थोड़ा सा we try to focus upon that. जर्नलिंग कर सकते हैं. जर्नलिंग मीन्स रात को लिखना. ये मैंने एक पिछले वाले में I had shared this in last to last webinar, and one person has like said about it कि it has been really useful that this lady tried journaling at night, that how many times she got angry today with her child, how many times she appreciated her child, how many times, like, you know, she was like, the child was saying something but she was busy. ठीक है, तो ये if you journal it, रात को इसको आप लिखो तो आपको अपना पैटर्न समझ में आएगा. ठीक है, so by parenting approach we mean making our own pattern. ठीक है, अपना पैटर्न बनाना जहां पे हम इन 3, 4, 5 चीजों पे फोकस कर पाए एंड अपने आप को समझें. we understand ourselves and then we work with the child. ठीक है, yes, now please whatever you want to share and talk about, let us please open it for that. Hello ma'am, Asta here. मैम आपने जो अभी एल्डर्स के बारे में सिम्टम्स की बात की थी कि द चाइल्ड अगर उसके सामने कोई इमोशंस होते हैं तो वो वार्मनेस नहीं शो कर पाता. ये अगर बच्चे के साथ होता है या एक एल्डर के साथ होता है तो व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट? मींस आई फील लाइक आई एम वन ऑफ देम. ठीक है, अफेक्शन मतलब कि रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं. Yes ma'am, and the same cases with my son also. Means let's say if someone has arrived, we feel so happy, but my son is very normal to this situation. If someone is going, maybe his father is going to a long tour, so he doesn't have those emotions कि मतलब होता ना एक फील होए, वो वाली बात ही नहीं है उसके चेहरे पे होती नहीं है. मतलब he is chill like कि it's बढ़िया है. How old is your son? 6 years का है. Okay. See, 6 से 7 साल तक बच्चे ना बहुत ही प्रेजेंट में रहते हैं. वो फ्यूचर नहीं देखते हैं कि कल पापा नहीं होंगे घर पे, वो आज जा रहे हैं.
बच्चे का वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, 7 साल तक। लड़का है ना आपका? Yes, ma'am. Yes. हाँ, अभी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। 7 साल तक बच्चा जो है वो बहुत ही प्रेजेंट में रहता है, अभी इन द मोमेंट। ठीक है। एक और चीज है मैम, जैसे कि अगर कोई दूर का रिलेशनशिप है, मतलब नहीं, लेट्स से मामा है या कोई भी है, अगर वो उससे बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, तो वो इतना विलिंग भी नहीं होता, और बहुत बहुत रेयर होता है कि वो किसी से फोन पे बात करे। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है 6-7 साल के बच्चे के लिए। ये सब रिलेशनशिप्स है ना, ये सब सोशल चीजें हैं। यस मैम। ठीक है, मामा चाचा अंकल आंटी, हंसना चाहिए, बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक है ये सब कुछ। ठीक है। 6 year 7 year old till 7 years they don't understand all that. It does not exist for them. ठीक है, उनके लिए ये मायने ही नहीं रखता है, ये होता ही नहीं है। इसीलिए वो लोग बहुत बार बच्चे नहीं कर पाते हैं कि उनको हेलो बोलना है, उनको स्माइल करना है, या उनको कुछ करना है ना, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, उनके लिए सब कुछ एक है। इफ द चाइल्ड इज फीलिंग गुड देन द वर्ल्ड इज गुड, इफ द चाइल्ड इज नॉट फीलिंग गुड देन वर्ल्ड इज नॉट गुड। ठीक है, तो they don't have understanding of social structures, relationships. सिर्फ मदर का एक होता है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग। मदर इज द देयर इज लाइक वो एक होते हैं मम्मी के साथ में। ठीक है, फादर इज अनदर इम्पोर्टेंट एंटिटी ऑफ कोर्स। ठीक है, बट मदर के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 7 साल तक सोशल स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना। बहुत सारी एक्चुअली, इफ आई टेल यू वेरी क्लियरली, ये जो 6-7 साल, 6 तक, एटलीस्ट 6 साल तक बच्चों को 15 अगस्त, 26 जनवरी, देश, पेट्रियाटिज्म, ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। ज्योग्राफी, ये सब समझ में नहीं आता है उनको। ये इतना जब हम उनको 15 अगस्त, 26 जनवरी इतना करवाते हैं, बुलाते हैं गांधी जी के बारे में, ये दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। इट्स जस्ट क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी है क्रैम करने की, तो वो क्रैम कर लेते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट। So इसीलिए please don't worry about if your child is not greeting your relatives. It's completely okay. 7 to 8 year old child. उसके बाद में then it depends on the child's feelings. Okay ma'am. Okay Ma'am, ma'am. One thing more, if the case is the adult, then what's the solution? And I wanted to ask one more thing. Okay ma'am. If the case is with the adult, then what is the solution for this? एक minute. The same of like not reciprocating affection. Don't feeling that warm sharing. Sorry, मुझे एक मिनट, या तो सिग्नल वो हो रहा है क्या? You don't feel warm. Means वो warmness ना होना जो दूसरा पर्सन शो कर रहा है। See, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आस्था। Yes, उसके रीजन क्या हैं? उसके रीजन आर दिस रीजन रिलेटेड टू दिस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, और इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, और इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रेजेंट एनवायरमेंट। सो 3-4 चीजें हैं। ठीक है, तो उस पे, एंड देन हाउ इज योर प्रेजेंट, मेंटली आप कैसे आप चल रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मेंटली आपको क्या लग रहा है इस वक्त, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। So many a times when you are not feeling at peace in life generally, then you don't like to reciprocate to any kind of emotion, especially warmth or love, और इसको reciprocate करना बहुत ही difficult है। You can easily reciprocate to anger. कोई आपको गुस्सा कर रहा है तो आप सामने गुस्सा हो जाओगे, वो easy है बहुत। लेकिन to reciprocate to the softer emotions is difficult. So इस पे हम लोग आस्था बात कर सकते हैं कभी। ठीक है, यू कैन टॉक टू sure मी। ma'am. ठीक है, थोड़ा सा एक पर्सनली आपका एनवायरनमेंट क्या है वो समझना पड़ेगा इसमें। Okay ma'am, I'll definitely talk to you in person. Okay, Thank you so much. थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मेरी बेटी 5.5 साल की है, बट शी इज टू मच स्टबर्न। मतलब टोटली मतलब हर चीज के लिए वो मेरे पर डिपेंड है। दूध खुद नहीं पीती है, चम्मच से पिलाना होता है, ब्रश नहीं करती है, एवरीथिंग। और फिर मैं भी एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो उसकी जैसे मुझे इसको बहुत स्कोल्ड करना पड़ता है, मारना पड़ता है।
मतलब एक रोटी फिनिश करने में उसको 1 से 1.5 घंटा लगता है और वो रोटी फिनिश भी नहीं होती। तो ये मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ उस चीज से। ये भी ट्राई कर लिया कि एक दिन मैंने 12 to 20 आवर्स तक उसको कुछ नहीं दिया कि ठीक है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कुछ मत दो, उसको भूख लगेगी खुद खाएगी, लेकिन रात को 12 बजे तक उसने मेरे से कुछ नहीं मांगा। आखिर हार के मुझे उसको 1 गिलास दूध पिला के सुलाना पड़ा। मतलब बहुत ज्यादा, और वो बहुत सेंसिटिव है। मैं उसको बोलूंगी कितना भी, रोएगी नहीं मम्मा आपको ही करना है, आपको ही करना है, ब्रश करो बेटा, ट्राई करो सीखने का, नहीं मैं नहीं करूंगी, आपको ही करना है। तो मैं कैसे हैंडल करूं मुझे नहीं समझ में आता। रोज उसको मैं डांटती हूँ, मारती हूँ और फिर गिल्टी फील करती हूँ। देखिए आपके मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, एक कंट्रोल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया है प्रोबेबली आपने शुरू से। जब बच्चा 2 साल 2.5 साल का होता है तो उसको छोड़ना शुरू करना पड़ता है, ठीक है? और इनके प्रोबेबली आपके केस में वो नहीं हुआ है, ठीक है? कि आप उसको अपने ऊपर छोड़ दो, खुद से करने दो, खुद से, जैसे कि आप बच्चा नहाना खुद से चाह रहा है, या वो खुद से अपने आप को वाइप करना चाह रहा है, या वो खुद से क्लीन करना चाह रहा है, या खुद से खाना चाह रहा है, तो हम उसको मना कर देते हैं कि वो गिरा रहा है, खाना गिरा देगा, ठीक है? नो मैम, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ। इवन मैं तो इसको हमेशा ही बोलती हूँ कि नहीं बेटा आप करो, आप ट्राई करो। नो, कभी नहीं। इवन अपने बैग से बुक भी नहीं निकालती खुद की, नहीं मम्मा आप निकाल के दो। मतलब हर चीज टोटली। इवन मैं इसको बोलती हूँ कि आपको जो कपड़े पहनने हैं आप खुद निकालो बेटा अपने वार्डरोब से, मैं वो आपको पहना दूंगी। लेकिन वो भले मैं निकाल लूंगी, लेकिन मतलब बोलेगी कि निकालना आपको है, पहने की अपने चॉइस की। एक चीज और इसमें आपके से मुझे एक और चीज ये लग रहा है, एक चीज ये भी हो सकता है कि सी देखिए ये बहुत ही पर्सनल वो है, ठीक है? बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, बट जनरली जो मुझे समझ में आ रहा है मैं ये बता सकती हूँ कि आई फील कि आप में यू आर वेरी वेरी एंशियस। यस मैम। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि बच्चा 7 साल तक जो है, द चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ मदर, ठीक है? द चाइल्ड इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू मदर, बॉडी अलग है बट द चाइल्ड इज वन विद मदर, यस ठीक है? मैम। तो वॉट एवर इज योर फीलिंग, द चाइल्ड कैचेज इट एंड द चाइल्ड ऑपरेट्स फ्रॉम दैट। आपकी जो भी फीलिंग्स है, अगर आप रेस्टलेस हो, आप एंशियस हो, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो वो बच्चे के अंदर जा रहा है, ऐसा है। इट इज नॉट ओनली टिल यू आर फीडिंग द चाइल्ड। जब हम ये बोलते हैं ना कि टिल इफ द मदर इज फीडिंग द चाइल्ड, तो यस उसका मैम। कैसा स्वभाव है, उसने क्या खाया है, वो सब कुछ बच्चे को जा रहा है ना? यस इट इज मैम। नॉट ओनली दैट इट इज टिल 7 years। ओके मैम। 7 साल तक बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन योर रिड्यूसिंग योर रेस्टलेसनेस, है, क्योंकि ये कंप्लीटली उसको पास ऑन, मुझे जहां तक लग रहा है उसको हो रहा है। देन शी इज स्ट्रेस्ड एंड शी इज आल्सो फीलिंग रेस्टलेस द वे यू आर। एक्चुअली मैम किसी भी चीज में मैं इसको हैंडल करती हूँ ना, तो इसकी दादाजी और इसकी फादर का इतना प्रोटेक्ट करते हैं इसको हर चीज में, ओवर पॉजिटिव हैं वो दोनों इसके लिए। तो मतलब मेरी डांट का इस पे असर ही नहीं होता। फॉर ग्रांटेड ले लेती है मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी ऐसा। मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, मैं ये और मेरे हस्बैंड, हम 3 ही हैं, और ये मुझे 10 साल के बाद मैंने कंसीव किया था। तो मैं भी ओवर पैम्पर्ड है क्या है मैं नहीं समझ पाती, और फिर मैं इसको कुछ भी समझाने का ट्राई करती हूँ तो उन लोग का इंटरफेरेंस होता है कि तुम इसको कुछ मत बोलो, तुम खिलाओ। दूध मैंने इसको मग में सिखाया ही था जस्ट, बहुत टाइम लेती थी, मैंने कहा इट्स ओके। मेरे फादर ने नहीं तुम चम्मच से पिलाओ, वो टाइम लेती है। तो ये सब चीजें मतलब मेरी जो इसके पीछे की हुई मेहनत है ना वो जीरो हो जाती है। ओ देखिए ये रीजन तो है कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी सारे फैमिली मेंबर्स में एक चीज के लिए, तो वो क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके लिए करना क्या है, उसको सही कौन सा है। मैम वही है ना, फिर सफर तो मुझे करना होता है। See, इन ये ऐसे में क्या कर सकते हो आप, बिकॉज देयर आर लाइक सो मेनी अदर फैमिली मेंबर्स हैं और वो बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब एक जन बोल रहा है कि दूध कप से पी लो, एक जन बोल रहा है चम्मच से पिला दो, एक जन बोल रहा है अभी रहने दो बाद में पिला दो, ठीक है? तो जब इतने सारे वो एक चीज के इर्द गिर्द आइडियाज हैं, तो वो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द चाइल्ड, ठीक है? उसको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज दैट यू जस्ट कैन वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल।
Yes, ma'am. आप अपने हस्बैंड या अपने इन लॉज या किसी को भी, आप उनका बिहेवियर किसी का भी यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, Yes, ma'am. एंड वो बोलने से इट नेवर वर्क्स। Mm-hmm. आप किसी भी एडल्ट को बोलोगे, इट विल नेवर वर्क, इट विल गो अदर वेज, ठीक है। Yes, ma'am. अदरवाइज तो इसीलिए द ओनली थिंग यू कैन डू इज दैट यू वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड यू अपना रेस्टलेसनेस, अपनी एंजाइटी उसको नीचे लाओ, ठीक है। देन शायद एंड देन मेक अ बॉन्ड विद योर चाइल्ड, जैसे मैंने कहा कि उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाओ। सुबह में इफ पॉसिबल उठते, जब बच्चा उठ रहा है उस समय करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा, इफ यू कैन बी विद द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड वेक्स अप इन द मॉर्निंग, व्हेन चाइल्ड स्लीप्स एट नाइट, दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। Yes, ma'am. एंड अभी उसको ऐसे बहुत ज्यादा मत सोचो कि वो स्टबन है या क्या है, क्योंकि 5.5 साल अभी बहुत छोटा है, द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल। 7 साल से पहले उसको कुछ भी बोलना करना एक्चुअली इज नॉट राइट, ठीक है। वो कंफ्यूजन में हो जाता है जब उसे बहुत लोग बहुत कुछ सारी चीजें बोलते हैं। तो Mm-hmm. ये सीमा तो यू the only thing I can suggest you is that you need to work upon yourself and you can work upon bonding बनाने का काम आप कर सकते हो। Yes, ma'am. और सुबह और शाम, दिस इज द बेस्ट टाइम, रात का, ठीक है, क्योंकि दिन भर में मोस्टली हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है मोस्टली। Yes, ma'am. यू Yes. आर वर्किंग, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, तो आजकल काम घर में भी बहुत सारा है, तो दिन भर में टाइम निकालना इज डिफिकल्ट। बट मॉर्निंग व्हेन द चाइल्ड वेक्स अप, आधा घंटा तब, एंड नाइट व्हेन द चाइल्ड स्लीप्स, तब अगर 1-8 घंटा आप रह सकते हो बच्चे के साथ, तो वो बहुत ही बच्चे के लिए एश्योरिंग होता है कि आई हैव अ सेफ एडल्ट विद मी। Yes, ma'am. ठीक है, कहीं पे बच्चे के दिमाग में जब ये आ जाता है कि जो एडल्ट्स मेरे पास है वो सेफ नहीं है, ठीक है, उनको मुझ पे गुस्सा हो सकते हैं, वो मुझे डांट सकते हैं, वो मुझे मार सकते हैं कभी भी। Mm-hmm. When the child has this feeling, the child remains anxious, और Yes, उसको ma'am. पता नहीं चलता उसको क्या करना है, ये करना है, ये खाना है, नहीं खाना है, बोलना है नहीं, वो कंफ्यूजन में रहता है बहुत, Yes, ma'am. ठीक है। सो इज लॉट बहुत कुछ इस पे, मतलब यू कैन वर्क अपॉन योर सेल्फ बेसिकली। ये सब वी कैन पर्सनली टॉक अबाउट ऑल दिस, ठीक है। Yes, ma'am. Okay. Thank और you. किसी को कुछ, एनीवन एल्स वांट्स टू स्पीक? मैम फूड हैबिट्स के लिए थोड़ा रिकमेंडेशन अगर आप दे सकते हैं फॉर अ 11-year-old चाइल्ड, हाउ टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल ईटर्स, कि हमें उनको बोलना ना पड़े कि मीठा मत खाओ, तुम्हारा वेट ओवर है, ज्यादा है। देखिए 11-year-old चाइल्ड के साथ में एकदम से कुछ भी करना, आपको एकदम से परसों रिजल्ट दिख जाए ऐसा होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज दिस हैबिट हैज बिल्ड अप ओवर द इयर्स। तो एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट यस व्हाट यू कैन डू इज कि स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, विच हेल्प्स चिल्ड्रन। अगर आप उसको यूज कर सकते हो कहीं से, यू कैन हैव वेरी गुड स्टोरीज रिलेटेड टू हाउ द फूड अफेक्ट्स द बॉडी, ठीक है। इट हेल्प्स इवन 11-year-old को भी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टोरी होगी तो द चाइल्ड विल लाइक इट, ठीक है, बहुत सीधी सीधी नहीं। तो स्टोरी टेलिंग इज वन वे वेयर यू कैन हेल्प द चाइल्ड, बिकॉज स्टोरी सबको इफेक्ट करती है, ठीक है। Other than that, see, one very good way is that you can you have asked na, that cooking with the child, what the child likes doing, what the child likes, ये आपने पूछा है ना? नहीं मैम। ओके सॉरी, संगीता ने पूछा है ये, ठीक है। जी। तो what you can do is, रुचिका, you can involve the child in cooking process. पॉसिबल है ये? मैम एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ये है कि शी रियली लाइक्स मीठा, तो चॉकलेट्स एंड स्वीट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, खाना तो वो फिर भी ढंग का खा लेती है, बट शी लाइक्स अ लॉट ऑफ घी एंड बटर एंड देसी घी एंड ऑल। तो मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ कि मना करना चाहिए कि नहीं देसी घी एंड ऑल दैट स्टफ, और बटर भी भर भर के खाना, बट साथ में मीठा इज आई थिंक रियल बिग प्रॉब्लम। ऑल्दो हमने एक्सरसाइज बहुत करवा रहे हैं, बट वो खुद से कैसे उसमें कंट्रोल डाल रहे हैं कि मीठा नहीं खाना, मेरा बहुत तोंद आ रहा है, जबकि हम पेरेंट्स हम दोनों फिट हैं, हम लोग एक्सरसाइज कॉन्शियस हैं।
हम्म, हम्म। देखिए, वन तो एक देर आर चांसेस, एक ये हो सकता है कि भाई द चाइल्ड वो बिल्कुल स्वीट टूथ उसका है एंड द चाइल्ड इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ मीठा, तो बहुत ज्यादा उसमें आप ये कर सकते हो कि एक टाइम का आप वो डाल सकते हो लिमिट कि 3 बजे के बाद में मीठा नहीं खाना है, जो भी मीठा खाना है वो सुबह के टाइम में खा लो, ठीक है। दिस इज वन थिंग यू कैन डू, ओके ठीक है, क्योंकि जो मीठा 3 बजे के बाद खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है। ओके दिन के 3 बजे के बाद में द फंक्शनिंग ऑफ लिवर इज डिफरेंट, ठीक है, इट्स एट डिफरेंट, द लिवर इज नॉट रेडी टू यू नो फॉर इनटेक ऑफ ओके ऑफ स्पेशली ऑफ स्वीट्स, ठीक है। तो एक आप ये उसके साथ ट्राई कर सकते हैं कि मीठा जो है वो 3 बजे से पहले पहले दिन के फर्स्ट हाफ में आप खाओ, ठीक है, सेकंड हाफ में मत खाओ। एक ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, आप उसके साथ में बैठ के बात कर सकते हैं कि हाउ इज शी इज 10 years old, ऑलमोस्ट 11 ऑलमोस्ट 11, ओके। यू कैन टॉक टू हर, उसके साथ आप बैठ के बात कर सकते हो कि उसको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 10 साल का बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। मैम। वो सब स्कूल में पढ़ाते हैं आजकल, एनसीईआरटी में 2 साल से टेस्ट हो रहा है, एग्जाम दे दिया है, सब कुछ कर लिया है मैम, मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस है ये, बट पढ़ाने से कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। समझता है, बुक्स में से कोई नहीं बच्चा समझता है, कभी नहीं समझ। स्टोरी स्टोरीज भी सुनवाने की कोशिश की है, तो वो जैसे प्री टीन बिहेवियर होता है ना, सरकाजम में लेके उड़ा दिया गया है उसको, अरे क्या चिंता ही नहीं है। और वो बॉडी में जो इश्यूज ना आ जाए बच्चे में, उसकी भी बहुत चिंता है एज अ गर्ल। तो एक चीज जो हमने ट्राई करी है कि हमने उसको ये बोल दिया कि ये आपका मीठा है, दिस इज फॉर द नेक्स्ट 10 days, उसको आप अपना उसको करके खाइए। फिर भी मैम वो बच्चे को इतना मीठा बनाने का, यूट्यूब से वीडियोस देख के नई नई चीजें, केक्स पेस्ट्रीज बनाने का इतना शौक है कि बड़ा डर लगता है कि रिलेशनशिप ही ना खराब हो जाए बच्चे के साथ, क्योंकि हम उससे उसकी चीज जो है वो फोटो देख के क्योंकि उसमें मुझे लाड़ टपकते हैं। मीठा देखिए, एक्चुअली अभी इस एज में इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। मैम एक्चुअली बच्चा बहुत ओवरवेट है, लाइक अराउंड 12 to 14 kgs ओवरवेट है। ओके, देन आपने उसके बाकी टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी मैम, कुछ नहीं निकला, मतलब टेस्ट में कुछ टेस्ट, नहीं निकला है? शुगर वगैरह ऑल इज फाइन। शुगर का सब करवाया टेस्ट? जी। ओके, ओके। एंड हाउ इज द फिजिकल, कैसा है उसका एक्सरसाइज? 30 minutes to 1 hour of exercise. ओके, ओके। सी देन एक और एक Dr. Archana, can I just suggest something in this? यस यस प्लीज, यस। Ma'am, I have also This is suggestions. Anita here. After ma'am, Hi. So actually, I'm quite Actually, I'm quite interested in this nutrition thing of kids and Rujuta Devekar. Have you heard about her, the mother who was talking? Yes, I don't know your name. I have, Ruchita Devakar. Yeah. So उसने बोला है कि अगर आप बच्चे को पहली चीज की वो जो व्हाइट शुगर होता है वो मत खिलाइए, अगर उसके अलावा आप उसको शुगर केन वाला जो शुगर होता है वो दे रहे हैं या फिर कोकोनट शुगर दे रहे हैं, तो that is a better option. And if you are making anything at home, homemade things are fine. Ghee is never an issue. Every child should eat ghee as much as they like. So please, घर वाला घी खाने से तो उसे कभी मत रोको. बाहर वाला है तो definitely you should. बट मैम वो एक्चुअली ना जो चॉकलेट्स और कैंडीज उसको इतना शौक है, और लाओ ही मत, चॉकलेट्स लाओ ही मत. Like my daughter, she is 2.5. Till date, I never used to keep chocolates in my house. So the only thing you can do is not to get junk food in your house. If you will not get it, she will not eat it. If you are getting it, it means you are giving a stop to her. Okay, fine, आ गया, अब आप खा सकते हो. You stop getting it. Initially उसको बहुत इशू होगा, but बाद में वो ठीक हो. घर वाला ऑप्शन उसके लिए हमेशा ओपन रखो. उसे बोलो घर वाला आप कितना भी खा सकते हो, बट ये बाहर वाला is just not allowed. बाहर वाला बिल्कुल बंद कर दो. Let her realize कि okay, she can eat घर वाला. हाँ जी मैम. 10-11 year old आप ये नहीं कर सकते, आप जी बच्चे के साथ कर सकते हो. हाँ एग्जैक्टली, आप नहीं कर सकते 11 साल के बच्चे के साथ, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा वो प्रॉपर. बहुत ज्यादा. उस एज में पॉसिबल नहीं है, ठीक है. लाइक ये आप 6-7 साल तक कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद इट वोंट वर्क. उसके बाद तो ये कि वो बच्चे को खुद आप उसको उस लेवल पे लाओ जहाँ पे वो खुद समझे, ठीक है.
तभी ये वर्क करेगा, बाकी एनी काइंड ऑफ कंट्रोल इन दिस एज विल नॉट वर्क। ठीक है, तो हाँ तो रुचिका हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, कुछ और इसके रीजंस हो सकते हैं, मे बी रिलेटेड Sure, टू ma'am. एकेडमिक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या उसके पीयर ग्रुप से रिलेटेड हो सकता है, या कहीं कुछ और इमोशनल थिंग भी हो सकती है, बिकॉज इमोशंस, पेंटेड अप इमोशंस जो हैं उससे एकदम से बच्चे का वेट बढ़ता है इस एज में, 10-11 साल में। ठीक है मैम 3 साल हो गए इसको होते होते, 3-4 साल हो गए कि ओवरवेट हो रहा है ओवरवेट बच्चा। है। ठीक है, एक हम लोग अलग से इस पे बात कर सकते हैं। Sure, ठीक है, ma'am, sure. और भी Thank you. रीजंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, Thanks so much. या ओके, और किसी को एनीथिंग एल्स? Dr. Archana, regarding my daughter, okay, so like, you know, like we both work in defense. So what happens, like we stayed for 3 months, we got leave, so हम साथ में रहे। अभी जब ये अपने पापा को छोड़ के आई है, she is so much into like ना, every night she starts asking me when is my papa going to come, पापा कब आएगा, मम्मा पापा कब आएगा करके। And you know, it breaks my heart at days, you know, the look, listening to her, इतना बुरा लगता है मेरे को कि ये बार बार वही पूछ रही है, मेरा पापा कहाँ है, मम्मा मेरा पापा कहाँ है। And the other thing related to this is she gets very anxious when I go to office in the morning. तो वो बोलने लगती है, मम्मा आप ऑफिस जा रहे हो? तो like I have started telling her, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करती है कि ओके मम्मा ठीक है फाइन, आप जाना, मैं नहीं रहूंगा। मतलब मैं उसे समझाती हूँ कि बेटा देखो सबकी मम्मा जाती है, फिर वो वापस आ जाते हैं, दे गो, दे वर्क एंड दे कम बैक। सो आप जब तक अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, मम्मा विल बी बैक। सो एक ये 2 चीजों में ना मुझे उसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसे इमोशनली हैंडल करना मतलब मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, कि इधर आई एम गेटिंग लेट इन द मॉर्निंग और शी इज नॉट रेडी टू लीव मी, सो वो थोड़ा सा हो जाता है। सो almost every day I'm like half an hour or 15 minutes late because of dealing with her. So is there a way to deal with it? And she's quite young abhi though. That way it is more difficult. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इन दिस एज What ग्रुप, can you suggest? इन दिस एज ग्रुप थोड़ा सा सेपरेशन का एक रहता ही है, सेपरेशन एंजाइटी बच्चे का होता है इस एज ग्रुप में। ठीक है, टिल 5-6 साल तक रहता है इनफैक्ट। बट व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आप सुबह का, हाउ मच टाइम यू गेट विद हर इन द मॉर्निंग, गुड क्वालिटी टाइम वेयर यू बोथ I do get, like वो morning में bed पे उठ के we keep playing for like half an hour or so, जिसमें we talk और ना cuddling or anything like that keeps on happening। उसके बाद जब मैं उसको बोलती हूँ कि खुशू चलो let's brush our teeth, let's get clean and all that, फिर उसके बाद she will happily do that on few days she might feel cranky, तो रोती भी रहती है कई बार, तो बट धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है मतलब। ओके ओके, एंड देन ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैं ही करवा के जाती हूँ सब कुछ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो अनीता, आप यू कैन एक स्टोरीज का यूज करो, आई विल शेयर सम स्टोरीज विद यू। ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में होता है इस एज में। ठीक है, और इस एज में बच्चे को ये लगता है कि जो चीज सामने नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, वो एग्जिस्टेंस सीज हो जाता है बच्चे के लिए उतनी देर के लिए जब वो सामने नहीं है फादर या मदर। ठीक है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू हैंडल दिस आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू। 1-2-3 स्टोरीज हैं, आप ये हेल्प कर सकते हो उसको कि उतनी देर उसके यू लीव हर विद सम स्टोरी टू एक्सप्लोर समथिंग फॉर सम टाइम। ये थोड़े दिन आप ट्राई करो, 15-20 दिन, 25 दिन, देन लेट्स सी हाउ इट गोस, और फिर एक आदत धीरे धीरे बच्चे को पड़ जाती है। ठीक है, तो दिस आई विल शेयर विद यू, कुछ इस तरह के स्टोरीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस, आई होप, आई थिंक आपका कनेक्शन वो नहीं है। यस, और कुछ कहीं पे हम लोग अभी वाइंड अप करें इसको, सेशन को? Yashi, anything you would like to share, Yashi? So, okay, चलिए हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे सेशन को। Excuse me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, actually, myself, Parveen. I'm attending your webinar from the last second. This is the second one. I'm getting lot of thing. I am actually, most of the parents, they are here, they are having one kid. I'm having 2 kids.
One is 4-year-old boy and 8.5-year-old girl. And I'm also working. And Astha Diwan, she is my colleague. She know me. And my husband, he is working outside. He's in police department. So many time my girl, she complains me, you love this younger one. I want to sleep with you. कि मैं आपके पास कब सोऊंगी, आप उसको सुलाते हो, मेरे को प्यार नहीं करते. और उसको ना अटेंशन चाहिए. जैसे उसके फादर जब भी आते हैं तो वो अपने फादर के साथ रहना चाहती है. अब वो हमें मतलब एक स्पेस भी नहीं मिलता कि हम हस्बैंड वाइफ कोई बात भी करें. तो सी लाइक कि वो हमेशा अपने पापा के पास रहे और हम बात ना करें, वो सब कुछ करे, उसको ही ध्यान दो, उसको वो डांस कर रही है तो उसको ही देखो, मतलब हर चीज में उसका ही कुछ करो. तो मैं काफी कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं अपने पार्ट पे कहाँ ले कर रही हूँ. और एक बिग थिंग इज दैट कि लास्ट 2.5 मंथ से मैं एक इशू है, हेल्थ इशू, एलर्जिक प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ. एंड दैट वाज अ सीवियर वन फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ. सो मेरे को भी एंजाइटी और रहती है काफी. मेरे को रहता है कि बच्चे भी पास ना रहे. स्टिल आई एम ट्राइंग टू बैलेंस कि मैं उन दोनों बच्चों को बैलेंस करूं. बट कहीं ना कहीं वो गर्ल पे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है कि वो यूं सोचती है कि मैं उसको प्यार नहीं करती, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड हर या कुछ ऐसा है. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट शुड आई डू? आपका ये जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, मतलब इस वजह से आप क्या मतलब आप दूर रहना चाह रहे हैं बच्चे से? यस मैम, थोड़ा सा मेरे को इचिंग का इशू है, स्किन पे प्रॉब्लम है. एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो एक्सरेट हुआ है, धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हुआ है. तो मेरे को ये रहता है कि मैं पेन में हूँ तो बच्चे थोड़ा दूर रहें, मतलब मैं अपना पेन अपने आप ले लूं. अभी कुछ टाइम से थोड़ा सेटल हुआ है तो मैं ट्राई करती हूँ उन बच्चों के साथ खेलूं भी. बट मैं उनके साथ आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाती. जैसे मैं पहले क्या करती थी, ऑफिस से आने के बाद बच्चे को साइकिलिंग के लिए ले गई, होमवर्क कराया, तो दूसरे बच्चे के लिए टाइम रखा. तो मतलब क्वाइट कंफ्यूजिंग कि किसको कितना टाइम दूं. मैं अपने आप में कई बार गिल्ट फील होता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही बच्चों को. हाँ, ओके. इसमें देखो, आई वुड से कि ऐसा मत चलिए कि किसके लिए कितना टाइम रखूं. ठीक है, आप एक बच्चा 4 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है. आप ऑफिस से कब आते हैं शाम को? मैम अभी मैं घर पे हूँ, जनरली 9 to 5 का जॉब रहता है. अभी आप बिकॉज ऑफ लॉकडाउन घर पे हैं? हाँ जी, लॉकडाउन से. अब हेल्थ इशू की वजह से मुझे वर्क फ्रॉम होम असाइन हो गया दोबारा से. पहले बीच में 1 मंथ में गई थी. ओके. इसमें देखिए, जैसे मैंने अभी बाकी पहले जैसे बताया है, एक तो बच्चे को हाँ ये जरूर लग रहा है कि लैक ऑफ अटेंशन उसको मिल रहा है बच्चे को. ठीक है. और जनरली 2 सिबलिंग्स का आजकल ये एक इशू है, बहुत पेरेंट्स ये फेस करते हैं कि भाई बड़े बच्चे को ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे की, मुझे छोटे बच्चे की वजह से अटेंशन नहीं मिल रहा है. ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी आप करते हैं उसमें आप दोनों बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते. इज दैट नॉट पॉसिबल? लाइक कि मैं बड़े बच्चे को होमवर्क करा रही हूँ, छोटे को पढ़ने से मतलब नहीं होता. कभी कभी तो वो कोई बुक लेके बैठ जाएगा छोटे वाला, और बड़ी वाला अपना काम कर रही है. लेकिन कई बार क्या होता है, वो उसकी पेंसिल चाहिए, उसी का इरेजर चाहिए, उसी की बुक को मैं खराब करूंगा, कुछ करूंगा. दैट टाइम इट्स बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल. उससे सी ये एक थोड़ा सा एक स्ट्रगल तो है कि दोनों बच्चों को एंगेज करना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट ये आपको पहले से प्लान अगर आप इसको कर लो तो ये वर्कआउट हो जाएगा. कि जैसे कि एक बच्चा होमवर्क कर रहा है तो छोटे वाले को पूछ लो कि चल अब तेरे को क्या एक्टिविटी करनी है, व्हाट डू यू वांट टू डू. उसको पूछ. हाँ जी, मैं ट्राई करती हूँ ये करने की कि उसको मैं किसी गेम में लगा दूं या कुछ एक्टिविटी दे दूं. बट समटाइम्स इट डजंट वर्क कि वो उसको मेरे पास ही बैठना है और उसको उसका होमवर्क ही खराब करना है. हाँ देखो, वो खराब करना नहीं, एक्चुअली अभी 4 साल का बच्चा है, उसको होमवर्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. उसके लिए वो गेम है. ठीक है. उसके लिए वो गेम है कि नोटबुक में कुछ स्क्रिबल कर रहे हैं इधर उधर, क्योंकि ना तो उसको कुछ बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है कि नोटबुक में क्या लिख रहे हैं, और होमवर्क है और होमवर्क टीचर को दिखाना है. ये सब 4 साल का बच्चा नहीं समझेगा. वो स्कूल जाता है आपका बच्चा? नहीं मैम, अभी जाना था इस लॉकडाउन में, बट वो हो गया. हाँ, तो वो उसकी होमवर्क की और इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग है नहीं. ठीक है. अब आप उसको जब बोलते हो कि दीदी ये कर रही है तो वो उसको समझ में नहीं आएगा. जी. अब व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा आप इस पे फोकस करिए कि आप पहले से उसके साथ बात. बच्चों को ना हमेशा अगर हम पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर कर दें,
ठीक है। तो वो हेल्प करता है। जब हम एकदम से कुछ उनसे करवाते हैं तो वो नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। ठीक है, आप उसके साथ पहले से प्रिपेयर करिए कि भाई हम आज ये एक्टिविटी करेंगे, हम ये दोनों ड्राइंग करेंगे या कुछ नहीं, पेंसिल से खाली एक नोटबुक पे ऐसे से करेंगे या कलर करेंगे। ठीक है, कुछ एक आप उसके साथ पहले से प्लान करिए। ऑलरेडी जो प्लान्ड चीज है वो छोटे बच्चे के साथ में हमेशा काम करती है जी। ठीक है, एकदम से आप उसको कुछ काम देंगे वो छोटे बच्चे के साथ काम नहीं करेगा और वो रेस्टलेस हो जाता है और फिर उसके सामने जो पेंसिल है, जो नोटबुक है, वो उसको यूज करेगा जैसे तैसे। जी ठीक है, एक आप उसके साथ पहले से प्लान करिए रोज की भाई आज हम ये एक्टिविटी करेंगे। दिस आई ऑल्सो डू, माई डॉटर इज 5.5, तो ये मैं खुद ये बहुत प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं उसको जैसे सुबह से हम लोग बात कर लेते कि आज हम लंच के ब्रेकफास्ट के बाद में हम दोनों वाटर कलर से कुछ करेंगे बैठ के। ठीक है, तो उसको वाटर कलर दे के मैं शुरू हो जाता है, फिर वो अपना वाटर कलर में लगी रहती है और वो एनग्रॉस हो जाता है, बच्चा खो जाता है एक काम जब करता है तो। लेकिन उसको एकदम से आप बोलो ना कि नहीं अब ये लेके बैठ जा, तो वो नहीं समझ में आएगा। बच्चों 7 से पहले, 7 साल से पहले बच्चे को नहीं समझ में आता है जब उसको एकदम से कोई काम दे दिया जाता है। जी ठीक है, सो ट्राई टू ब्रिंग इट, एक उसको वो करो कि भाई ये हम करेंगे, ऐसा प्लान करो पहले से। ठीक है, दिस शुड हेल्प, ये हेल्प करेगा। और जो बड़ा बच्चा है जिसको ऐसे लगता है कि भाई उसको लैक ऑफ अटेंशन मिल रहा है, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि भाई स्पेंड उसके साथ सोने से पहले टाइम स्पेंड करो, सुबह उठता है या फादर अगर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैम फादर एक्चुअली दूसरे सिटी में वर्क करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, जब भी आते हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं उन बेटी के साथ काफी, बट यूजुअली वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैम पहले ये था कि मैं उसको स्टोरी सुनाती भी थी और उससे सुनती भी थी, लेकिन मैं उसको ये कहती थी अगर 8 बजे आप मेरे पास आते हो, क्योंकि वो टीवी देखना प्रेफर करती है बहुत बार, महाभारत देखनी है या जो आती थी अभी लॉकडाउन में जो फेज चला, सी इज इंटरेस्टेड इन महाभारत की, वो फिर बताती भी और वो अंडरस्टैंड भी करती है। फिर मैंने ये इसको ये कहा कि आप 8 बजे या 9 बजे मेरे पास आओगे तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, 10 बजे आओगे तो वो आपको नहीं, फिजिबल नहीं है स्टोरी सुनना, फिर सोने का टाइम है। तो वो उसको पसंद भी है कि वो स्टोरी खुद भी सुनाती है कि नहीं आप नहीं सुना रहे तो मैं सुना देती हूँ। बट काफी बार ये थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं इग्नोर कर पा रही हूँ, तो मुझे उसमें थोड़ा सा इशू लग रहा है कि मैं अब इस स्टेज पे क्या कर सकती हूँ। नहीं, इसमें देखिए वन है, इसके गिल्ट की जरूरत नहीं है। आप जितना कर सकते हो उतना आप अगर कर रहे हो तो गिल्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भी हेल्थ इश्यू भी है, आप जॉब भी कर रहे हो और हस्बैंड आपके यहाँ पर है नहीं, दूसरे सिटी में है, ठीक है, तो ये आप यू हैव लॉट टू हैंडल। यस तो ऐसे में अगर आप गिल्ट में जाओगे, रेस्टलेस होगे, तो उससे प्रॉब्लम और ज्यादा होगी। ठीक है, एक सेशन में इस पे ले लूंगी स्पेशली वर्किंग मदर्स के लिए। ये पहले अनीता और किसी और भी समवन है, अनीता टोल्ड मी, मेजर अनीता, yes, you said that ये वर्किंग मदर का गिल्ट वाला बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है। yes बहुत इसको yes Archana, I would also say that, yeah. Yes, our society has somehow we keep comparing, somehow we keep judging ourselves on those standards ki are we coming up to those expectations. So हमने अपनी मदर्स को देखा है तो कि वो लोग सुबह से लेकर शाम तक लगा देते थे हमारे पीछे, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आर वी डूइंग, हमें जितना करना चाहिए उतना कर पा रहे हैं। वी कीप आस्किंग द टाइम, द डेविल इनसाइड अस टेल्स नहीं यार तुम कहां कर रहे हो। so actually it happens, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू नहीं, ये सोसाइटी यहाँ वहां से सोसाइटी में से इधर उधर से और आता रहता है ज्यादा, तो इसीलिए बिकॉज एंड वी आर सो रेडी टू रिसीव कि भैया हमें गिल्ट दे दो थोड़ा सा, तो हम ऑलरेडी रेडी होते हैं उसको रिसीव करने के। एक्चुअली मैम सोसाइटी का क्या रहता है कि बच्चे का ब्रोटअप आपको करना, अगर वो कुछ गलत होता है बच्चे के साथ तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लीटली कि आपने अपनी जॉब को प्रेफरेंस दी, केयर नहीं किया, तो वो चीजें कहीं ना कहीं माइंड में होती हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे हम लोग बात करते हैं। जॉब की बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट द जॉब, और ऐसा कोई स्टडी नहीं है विच शोज, ऐसी कोई रिसर्च स्टडी नहीं है जो ये दिखाती है कि वर्किंग मदर और नॉन वर्किंग मदर के बच्चों में कैसे कैसे बहुत इफेक्ट, बिकॉज हमने खुद देखा है, जैसे हमने लास्ट जनरेशन देखे हैं। ठीक है, तो वी नो कि किस तरह से कितना नॉन वर्किंग मदर होने से ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सब कुछ ना सर्वगुण संपन्न बच्चे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
नहीं मैम, बल्कि हमें लगता है कि वर्किंग मदर के बच्चे मोर डिसिप्लिन्ड होते हैं. यस, एक्चुअली थोड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यस. ठीक है. सो वी विल टॉक, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम. So shall we wind it up here? Yeah, sure. Okay. Thank you for being part of this. Thank you so much, Archana. ma'am. Thanks a lot. Thank you, Archana ma'am. Thank you, Anita ji. Thank you so much. Thank you. Yeah.